Hello, everyone. Welcome to our podcast, Growth Stories, in which we share inspiring stories of industry experts we admire and we uncover their path to success and something that we can learn and take away. So, today we have with us Ruchit Goswami, co founder of Size Zero Cafe. Size Zero was started by two young entrepreneurs in 2015, Ruchit and Ankit Nanda. So this brand started from a two-tier city, Rajkot, and now they're expanding their wings across India. Maharashtra is one of them. So they currently have 21 outlets that are open and 9 soon to open. This brand bootstrapped with a capital of 20K and now they're clocking a revenue of 20 crore annually. That's crazy, right? So without further ado, let's dive in and speak from the horse's mouth itself of how did they achieve this success. So welcome Ruchit to our podcast. Very excited to have you on board and talk about everything that you guys have done and everything that you guys have achieved. Hi, Rima. First of all, thank you so much to Parin and Team Relo as well for having me here. I'm really excited to look forward. Same feelings mutual, Ruchit. So, Rajat, let's start and let's start with. Can you tell us something about your journey? I read somewhere that there's a story about Pani Puri. Is that what you Okay. guys started your cafe with? Let's start with that. I want to understand more about that. Okay. To be very honest, initially we never thought we'll be having a cafeteria. We want to start something in food industry. So me and my partner Ankit, we were discussing how can we enter in this space. At that time, during 2015, I used to work for a company and I look after sales department. So most of my time would go in traveling. So one thing I noticed, Pani Puri was available everywhere. I traveled to Chhattisgarh, I traveled to Karnataka, Rajasthan, UP, MP, even West Bengal. Pani Puri was available with different names. Some call it puchka, some call it pakodi, some called it pani ke batashe. But there wasn't any significant brand who can cater the whole market. So we thought, let's give it a shot. Pani Puri is available everywhere. Ticket size is convenient. You can make a brand out of it. So we started with Pani Puri, and luckily we got this quirky name, Size Zero, because our target audience was female. To target them, we named it Size Zero. That's how it got started. And at that time, we were not having that much capital. I used to earn around 7 to 8 thousand a month during 2015, and my partner was also having same salary. So with the investment of somewhat around 18 to 20K, we started. बट सिटी में गए कहीं पे स्पेस ही नहीं मिल रही है, 20,000 रुपए है और स्टार्ट करना है. ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई जा रहे थे, इंटीरियर कॉस्ट भी ज्यादा हो रहा था, घर से पैसे नहीं लेने थे. दैट वाज द मोटिव कि खुद ही करना है. दैट टिपिकल माइंडसेट कि अपने दम पे ही सब कुछ करेंगे. So that's how it started. Then someone suggested you should try Marwadi University. Marwadi University is the leading university in whole Saurashtra region. So वहाँ पे पूरे सौराष्ट्र के स्टूडेंट्स आते हैं and you'll get cream crowd. So we approached there. We made a presentation. सिविल कोई स्टार्टअप का presentation होता है. That's how we made the presentation. We emailed it to the registrar of the university and dean as well. एक के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे लगातार वहाँ पे 1-2 महीने तक वहाँ पे जाते रहे अपॉइंटमेंट लेने के लिए. अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी, कोई अवेलेबल नहीं था. फिर जैसे तैसे करके एक बार अपॉइंटमेंट मिली, प्रेजेंटेशन दिखाया कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड. इट्स नॉट सम काइंड ऑफ स्ट्रीट वेंडर, बट हम एक ब्रांड बनाना चाहते हैं यहाँ पे. उनको भी अच्छा लगा. थोड़ा स्टार्टअप वर्ड यूज किया था, तो एनकरेज करने का उनको एक चांस मिला, तो उन्होंने एक जगह दे दी मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. वहाँ पे हमने 20,000 से स्टार्ट किया. वी वर हैप्पी कि एटलीस्ट जगह मिल गई. आगे क्या होता है, कैसे होता है, वी वर क्लूलेस. कुछ भी आइडिया नहीं था. मेरा पार्टनर जो अंकित नंदा है, हिज थर्ड जनरेशन इनटू फूड बिजनेस. उनकी ग्रैंडफादर फूड बिजनेस में थे, देन हिज फादर, एंड नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 40+ ईयर. तो उसके ब्लड में ही था. सो ऑपरेशंस इन एंड आउट वो सब आइडिया था.
बट उनके लिए भी पहली बार था, मेरे लिए भी पहली बार था. इवन वी स्टार्टेड ऑन 15th मार्च. 14th मार्च रात को 8 बजे आई आस्क्ड अंकित कि पानीपुरी का मसाला कैसे बनता है. मुझे कुछ आइडिया नहीं था. उसने बोला देख लेंगे, कोई बात नहीं. स्टार्टिंग में वी डिड नॉट हायर एनीवन. टू रीजन. फर्स्ट, एक तो पैसे भी नहीं थे. सेकेंड वन, स्टार्टिंग में हमें खुद ही देखना था कि क्या चीज कैसे होती है. एटलीस्ट हमें सब कुछ आए तो हम वर्कर्स को सिखा सकते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होती है, प्रपोजन ये सेट होता है, ये वो. मतलब एक के हर एक चीज में हम अब खुद ही कर स्टार्टिंग में की, फिर जाके वर्कर्स हायर किया. तो 1 साल तक हम लोगों ने खुद ही सब कुछ किया. पर प्रॉब्लम यही आ रहा था कि सिर्फ रेंट ही पे कर पा रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बैठ नहीं रही थी. दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि पानीपुरी और चाट में टिकट साइज बहुत कम है और आपकी ओवरहेड बहुत ज्यादा है. रेंटल्स आपके एक अमाउंट है, स्टाफिंग कॉस्ट आपकी एक अमाउंट है, लीजिंग कॉस्ट एक अमाउंट है. तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू और ओवरहेड एक्सपेंसेस मैच नहीं हो रहे थे. कस्टमर से फीडबैक आ रहे थे, आप चार्ट के साथ ये चीजें इनकॉर्पोरेट कीजिए. So this was like a ये food दैट्स हाउ. wagon. So this was like a food wagon or like a restaurant? नहीं नहीं, इट वाज इनसाइड अ कॉलेज कैंपस. सो एक Okay, प्रॉपर inside the कैंटीन था. college campus. इनसाइड द कैंपस ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर था. तो सजेशन जैसे मिलते गए, वी फर्स्ट वी इनका कोल्ड कॉफी, वी इंट्रोड्यूस कोल्ड कॉफी एंड सैंडविचेस. लोगों को अच्छा लगा, स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी काफी अच्छा था. रेवेन्यूज वर लाइक स्काई रॉकेटेड. आज ही मैंने अपने 2015 की शीट्स निकाली. उस टाइम पे हम पॉज भी यूज नहीं करते थे. सो वहां पे डेट्स के हिसाब से सेल्स फिगर लिखे हुए थे. कहीं पे 1200, 1500, 1300 इतने फिगर लिखे हुए थे. और आज व्हेन आई रिकॉर्डेड कि आज हमारे डेली के सेल्स 4 लाख 5 लाख तक है. तो मतलब वी started from almost 1,000-1,200 rupees to 4 lakh rupees. It's quite a journey. तो धीरे धीरे मेन्यू ऐसे अपग्रेड करते गए, लोगों के सजेशन लेते गए, इन्वेंट्री बढ़ाते गए और वैसे मॉडल अपडेट करते गए. इन 2016 वी स्टार्टेड अ फूड ट्रक एज वेल. Okay. बट गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट इश्यूज बहुत चलते हैं यहाँ पे कि आप ट्रक को कहीं पे रख नहीं सकते, Right. परमिशंस नहीं मिलती लीगली. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे था ही नहीं कि आप ट्रक, जैसे यूएस वगैरह में, अब्रॉड में प्रॉपर गाइडलाइन है कि ट्रक लगाने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, वाटर कनेक्शन दिया जा रहा है. यहाँ पे ऐसा कुछ 2016-17 में नहीं था. Right. तो ट्रक स्टार्ट किया, 1 साल तक चलाया. पर हर दूसरे वीकेंड पे यही प्रॉब्लम आती थी. कोई ना कोई आ जाते, जैसे कि एएमसी आरएमसी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ की, वो आ जाते थे, बंद करवा देते थे, या फिर वो लीगल नोटिस दे जाते थे, आप रोड पे ऐसे नहीं रख सकते, ये वो. तो हमने सोचा कि ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं करेगा. आप पैसे बचा सकते हो, रेंटल कम लग रहा है, ठीक है, बट एक स्केल आप जो भी मन में था कि एक ब्रांड बनानी है, वो इसमें नहीं हो सकता. Right. तो हमारी ऑलमोस्ट 5-6 लाख तक की सेविंग थी, उसमें लगा दी थी ट्रक में. 1 साल में ही वो ट्रक हमने बंद कर दिया कि इन्वेस्टमेंट समझ के इसको, मतलब लर्निंग, इट वाज अ लर्निंग. 2 outlet. One, Okay. we started in Marwadi University, college canteen, first outlet, and this second food truck. Food Okay. truck we had to close it down, तो वो close कर दिया, and then we gave our first franchise. There is interesting story behind this first franchise. We gave it in 2017. One of our customer asked कि आप मोरबी में क्यों नहीं खोलते. मोरबी में ऐसा है कि वहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. बीइंग अ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, कंपटीशन बहुत कम है, ऑप्शन भी बहुत कम है, लोगों के पास पैसे बहुत है वहाँ पे, क्योंकि इट्स अ सिरामिक सिटी. पैसे बहुत है बट ऑप्शन नहीं है. तो दे अप्रोच किया, आप मोरबी में करो, मोरबी में करो. ऐसे ऑलमोस्ट 10-12 लोगों ने अप्रोच किया. फिर हमने सोचा कि लेट्स गिव इट अ शॉट. फ्रेंचाइजी कैसे देते हमें नहीं आइडिया था. फ्रेंचाइज फी क्या होता है कुछ आइडिया नहीं, डिपॉजिट क्या लेंगे, रॉयल्टी क्या लेंगे, रेवेन्यू कैसे शेयर करेंगे, स्टाफिंग क्या होगी, एसओपीज, ऑपरेशन, रॉ मटेरियल, चीजों का आइडिया था ही नहीं उस टाइम पे. बट अराउंड 1.5 lakhs as a franchise fee. Okay. Actually, that was, my next question, that how did you decide to enter franchising business with just one outlet?
I mean, you guys just jumped to your franchise. And Destiny. first, that's it. I mean, that's it. Someone came to you and said that Morbi mein kyun hai, and they want to open, and that was your decision to enter franchising business. That was, yes, that was the eureka moment. Ki they asked, we never Hmm. thought ki we would open our franchise stores in various Hmm. cities. एक्सपेंशन करना था, बट हाउ विल डू इट वो कुछ आइडिया नहीं था. 2-3 आउटलेट अलग अलग सिटीज में खोलेंगे, बट कंपनी ओन रहेगा, फ्रेंचाइज ओन रहेगा, वो कुछ आइडिया नहीं था. Right. तो दैट्स हाउ फर्स्ट फ्रेंचाइज हमने ओपन की, एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें. इट्स the first franchise is still running. It's been almost 17, 18, 19, 21, 6 years still operational. Yes. Amazing. So ये रेयर होता है कि 6-7 साल तक आपकी फ्रेंचाइज स्टोर चालू रहे, बहुत ही कम होता है. तो दैट इज सक्सेस बोल सकते हो उसको आप. उसके बाद वी ओपन अवर सेकेंड स्टोर इन राजकोट, अगेन अ फ्रेंचाइज स्टोर. Okay. फिर एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया कि अभी आगे इस फ्रेंचाइज मॉडल को कैसे डेवलप करें, क्या करें. Same thing happened कि a guy approached us कि let's open a cafeteria in Rajkot. We said okay. Location hunting start हुआ. थोड़ा बहुत पहले मोरबी में एक फ्रेंचाइज दिया था, तो we know कि क्या लूप होल्स थे हमारे मॉडल में. Right. कि इस चीजों को रेक्टिफाई करना है. मेन्यू में क्या प्रॉब्लम था, ऑपरेशन में क्या इश्यू आए थे, पीओएस में क्या इश्यू आए थे, तो वो थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर लिया हमने उस टाइम पे. वहां पे राजकोट में एक फ्रेंचाइज दी. इट वाज अराउंड 3300 स्क्वायर फीट स्टोर. इट वाज इन अ बंगलो. तो एट दैट टाइम इन 2018 इट वाज फर्स्ट कैफेटेरिया इन बंगलो. सो राजकोट के लिए एक नॉवेल्टी थी कि अर्लियर कैफेज थे राजकोट में बहुत सारे, बट ये पहली बार हुआ कि किसी ने बंगलो में सिटी के अंदर ही कैफे खोल दिया, विच इज ऑपरेशनल ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल, क्योंकि सारे कैफेज इवनिंग स्लॉट में ही वर्क करते थे. तो वहां पे हमें बेनिफिट मिला कि सिटी के अंदर है और डे टाइम भी हम कैफे ओपन रखते हैं. तो वहां पे भी अच्छा रिस्पांस मिला. दैट स्टोर इज कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड. इट्स स्टिल रनिंग. It's been almost 5.5 years. The Rajkot one that you have currently is company owned and company operated. That was not a franchise. That was not. That was franchise at that time, but we took over it. Okay. In 2020, we bought his share as well. Right. So now it's completely company owned and company operated, COCO model. Right. There are two stores which are under company. One is in Marwadi University and one is in city area. So these two are owned by company, operated by company. Right. एंड उसके बाद तो फिर एक आउटलेट आपकी क्लिक होती है, तो इंक्वायरीज लीड्स आने लगती है कि मुझे यहाँ पे खोलना है, वहां पे खोलना है, ये करना है, वो करना है. फिर धीरे धीरे प्रोसेस चालू हो गया. बट दैट टाइम वी आर नॉट थिंकिंग कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वी शुड अप्रोच पीपल, वी शुड स्टार्ट अवर लीड जनरेशन कैंपेन. लीड्स आती है, फॉलोअप लेते, पिच करते, वो कुछ हम नहीं करते. तो ऑर्गेनिक जो भी लीड आती थी वो कन्वर्ट करते थे. Right. फिर almost in 2021 after COVID, late in 2021 we thought कि ऐसे नहीं होगा. We need to buckle up कि अब हम भी कैंपेन रन करें, हमें लीड जनरेट करें, अलग अलग सिटीज में एक्सपांड करें. तो वहां से स्टार्ट हुआ फिर जर्नी. वहां से ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ गया. 2021 we opened 8 outlets. 2022 we opened again 8 outlets, and this year we almost closed 9 outlets. And from that it's been almost 1 2 3 4 7 months, and we closed 9 outlets. We are planning will open 30. The number of outlets would be 35. That's amazing. So Ruchit, tell me that what was your initial decision as a franchisor? I mean, a brand who gives out franchises, did you used to select the person, see whether there's there's a vibe or they understand your brand? What was that process while selecting a franchise owner for your brand? Screening is very much important. We got a lot of inquiries, especially for Morbi, especially for Jamnagar and Junagadh as well. But
as you mentioned, the vibe should Yeah. vibe matters. If they don't understand brand guidelines, what kind of customer you want, how you are going to serve them, these are the things that really matters. क्योंकि आपका विजन और उनका विजन एक जगह पे सिंक नहीं हो रहा है, तो मान लो आपने स्टोर ओपन कर दिया, प्रॉफिटेबल भी है, 3 महीने 6 महीने 1 साल चला, बट आगे का कोई फ्यूचर नहीं है। आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो बैलेंस ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने पैसे लगा दिए, चालू हो गया। यू नीड टू गिव योर 100%। अटेंडेंस बहुत मैटर करती है कि अगर इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है तो उसको साथ में ऑपरेशंस मैनेज करने आने चाहिए। ऐसा नहीं कि इज जस्ट हैविंग मनी, उसने कोई अच्छा मैनेजर यहाँ पे बैठा दिया एंड इट वुड गो, द स्टोर वुड रन ऑन ऑटो पायलट। ऐसा नहीं होगा, एफर्ट्स तो बहुत देने पड़ेंगे। Right. So were there any points that you guys had in mind कि अगर ये चीज होगी तो ही हम उनको जीरो कैफे का फ्रेंचाइज देंगे? लाइक ऐसा कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर किया था आप लोगों ने? फर्स्ट अभी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही अभी हमने कुछ फिल्टर ऐड किया है कि कोई भी आता है दैट ही आस्क कि आई नीड फ्रेंचाइज। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि आप अभी क्या करते हो। राइट। यूजुअली मेन सिनेरियो यहाँ पे गुजरात में ही ऐसा होता है कि लड़के को सेट करना है, शादी करानी है, एक बिजनेस दे देते, फ्रेंचाइजी ले लिया तो दे कैन शोकेस कि ये बिजनेस कर रहा है, स्पेशली विद द रिच पीपल। फिर स्टोर चलता है नहीं चलता वो कुछ देखना है, क्योंकि एक स्टोर के लिए मान लो उसको 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं, उसका उसमें कुछ नहीं है, मतलब लॉस भी हो गया तो वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्पेशली इन सौराष्ट्र एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज ये बहुत होता है। तो ये चीज हम पहले ही देख लेते हैं कि विजन क्या है इसका, इसको सिर्फ पैसे लगाने, पैसे कमाने, क्या करना है। तो वो जहां तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते कि इसकी रेडीनेस कितनी है काम करने के लिए। क्योंकि रिसेंट एग्जांपल एक देता हूँ कि भुज में हमारा एक स्टोर है, दैट गाय वाज इन अ बैंक, बहुत ही रेप्यूटेड बैंक में मैनेजर थे वो। he left his job, he went to his hometown Bhuj and opened size 0. उसकी बहुत अच्छी सैलरी थी, फिर भी उसने छोड़ दी। he was filthy rich, मतलब उसकी करोड़ों की जमीन थी, बट फिर भी वो साइज 0 का आउटलेट उसने किया, और एवरी सैटरडे संडे वो आदमी किचन में जाके हेल्प करता है स्टाफ को। जब रश बहुत ज्यादा होता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं ऑनर हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो खुद जाके किचन में सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है, सबके साथ बैठता है, सबके साथ बात करता है, इवन स्टाफ के साथ वो खाना भी खाता है और सबको साथ लेके चलता है। वो आउटलेट हमारा सबसे प्रॉफिटेबल आउटलेट है, और सबसे ज्यादा वहाँ पे मतलब स्टाफ भी सबसे ज्यादा हैप्पी है। मतलब एक एग्जांपल सेट किया है उस आदमी। So I mean, you look for such people, but it's difficult, no? ऐसे लोग ऐसे ढूंढना और determine करना, it's very difficult. बहुत डिफिकल्ट है। ये लोग हमारी ब्रांड को भी आगे ले जाते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, वो हमें भी पुश करते हैं। राइट। सो ऑन दैट नोट कि ये लोग आपके ब्रांड को आगे लेके जाते हैं, नाउ ब्रांड परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट विद इन फ्रेंचाइजीज? आई मीन ऐसा कोई सेट गाइडलाइंस है जो आप उनको देते हो? बिकॉज़ जब बहुत सारे फ्रेंचाइजीज होते हैं ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है वो मेंटेन करना, यू नो, वो ब्रांड कम्युनिकेशन मेंटेन करना, वो आप कैसे मैनेज करते हो? वेरी नाइस क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम हर बार आता है क्योंकि हर एक फ्रेंचाइज ओनर अपनी कुछ सेट ऑफ थॉट लेके आता है। कोई ये बोलता हम ऐसे मार्केटिंग करेंगे, कोई ये बोलता हम ये करेंगे, ये ऑफर चलाएंगे, यहाँ पे ब्रांडिंग करेंगे, स्टोर में इंटीरियर पार्ट में अपने सजेशन देने लगते हैं, मेन्यू में सजेशन देने लगते हैं। बट वी हैव मेड सेट ऑफ स्टैंडर्ड कि भाई आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आप अपना दिमाग लगाना है तो आप खुद का ही स्टोर कर ले। आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। मेन्यू हमने दिया है वही फॉलो करना पड़ेगा, इंटीरियर में हम जैसा सजेस्ट कर रहे हैं वही करना है। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। आप साइज 0 भुज में जा रहे हो, साइज 0 जामनगर में जा रहे हो, या साइज 0 मुंबई में जा रहे हो, तो एक यूनिफॉर्मिटी कस्टमर को मिलनी चाहिए। तो कुछ एसओपीज डिजाइन किए कि ये चीज पर्टिकुलरली इस तरीके से ही होनी चाहिए। राइट। वो काफी इम्पोर्टेंट है।
Right. पर region to region थोड़ा बहुत तो menu differ होना चाहिए ना. So do you guys also take that into consideration? So that happens on your level, on brand level, and not on franchise. Who Yes, decides that? not on franchise level. Okay. Yes, sir. I'll answer this. See, Hmm. 5 उंगलियां है, पांचों अलग अलग है. सेम फूड में Right. हर एक को हर एक चीज अच्छी लगे ऐसा जरूरी नहीं है. Right. हर एक का अपना टेस्ट अलग अलग होता है. Hmm. सो मान लो मुंबई में कोई चीज चल रही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि राजकोट में चले. राजकोट में True. कोई चीज चल रही है, जरूरी नहीं कि अहमदाबाद के कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ले. True. दैट्स व्हाई मेन्यू में हम 80% डिशेस फैमिलियर डिशेस ही रखते हैं. Okay. बाकी के जो 20% पोर्शन है उसी में हम वेरिएशन देते हैं Hmm. कि रीजनल फ्लेवर्स है, रीजनल डिशेस है, कि वहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या इनोवेशन कर सकते हैं. बट 80% प्रोडक्ट शुड बी फैमिलियर. आई गिव यू एन एग्जांपल कि लोग यहाँ पे बोलते हैं व्हाई डोंट यू ट्राई सुशी. मुझे पता है, आई एम सिटिंग इन राजकोट, जामनगर, जूनागढ़. दिस आर द सिटीज पीपल डोंट नो व्हाट इज सुशी. Right. दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. Right. तो मुझे मेन्यू में इनकॉर्पोरेट करने की वहां पे कोई दिख ही नहीं रही है वजह. Right. आपके थ्रू नहीं जा रहा है. I mean that decision of menu में क्या होना चाहिए, that is decided by you, like on brand level. यस यस. प्लस फीडबैक्स, जैसे हमने पहले बोला कि वी स्टार्टेड विद चाट. तो कस्टमर के सजेशन आ रहे थे, व्हाई डोंट यू ट्राई कॉफी, व्हाई डोंट यू ट्राई सैंडविचेस. तो कुछ कुछ सजेशन अच्छे थे, उनको हमने लिया और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. दैट्स हाउ साइज जीरो पानीपुरी बिकेम साइज जीरो कैफेटेरिया. Right. तो वो सजेशन के टाइम हम रिलेक्टेंट रहते कि नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे. हमारे जो कुछ प्लान है कि चार्ट में ऐसे ही आगे बढ़ना है, वही पकड़ के चलते तो आज इस पोजीशन पे हम ना होते. True. तो रिलेक्टेंट भी कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए. यू शुड बी वाइड ओपन की सजेशन आ रहे हैं, एक बार देख तो लो. Right. True. लोगों को So क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए. true. I'm very interested to know, the way we corporate work is we do have like ऐसा monthly meeting and all of those like with everyone. So ऐसा कुछ franchisees के साथ भी होता है, like अगर आपके पास अभी 21 operational है, how do you communicate 21 के साथ किसको क्या problem हो रहा है, कैसे हो रहा है, like do you have like a meeting process or something with them, communication process? That there needs to be a system कि आप हर एक जगह पे पहुंच नहीं सकते. Yeah. पहले 4-5 आउटलेट थे तो मैं हर एक फ्रेंचाइज ओनर से डायरेक्ट टच में था कि मुझे कुछ भी इश्यू आ रहा है, उनको कुछ भी इश्यू आ रहा है, दे वुड इंस्टेंटली कॉल की भाई ये नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, इसमें प्रॉब्लम है. बट नाउ आफ्टर ओपनिंग ऑलमोस्ट 20 प्लस आउटलेट्स की कम्युनिकेशन में इश्यू आता है तो एक सिस्टम हमने रखी है कि सिस्टम के थ्रू ही आ रहे. फ्रेंचाइज रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किए है कि डायरेक्ट उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेंचाइज रिलेशनशिप मैनेजर को कांटेक्ट करें. फिर वहां से भी रिजॉल्व नहीं हो रही है उनकी क्वेरी तो हमारे पास आती है. तो ऐसे यू नीड टू हायर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कि डिस्पैच मैनेजर है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, एचआर के लिए अलग डिपार्टमेंट रखा है. तो ये लोग काफी जरूरी है, एक हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी. तो ये सब ब्रांड लेवल पे काम बट कम्युनिकेशन इज यस यस बट कम्युनिकेशन इज मस्ट कि फ्रेंचाइज ओनर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि एक बार फ्रेंचाइज दे दिया उसके बाद कंपनी और फ्रेंचाइज ओनर का कोई रिलेशन ही नहीं बना नहीं है. तो कम्युनिकेशन रेगुलरली होना चाहिए. वन मोर थिंग दैट वी डू इज मंथली ऑडिट. हमारे ऑडिटर्स हर एक आउटलेट पे हर मंथ जाते और उनको एक एसओपी दी है और सेट ऑफ चेकलिस्ट दी है कि ये चीजें फॉलो हो रही है कि नहीं. वहां पे जाके देखते हैं कि हर एक चीज मेंटेन हो रही है कि नहीं और उनको वहां पे इंस्टेंटली वो हैंड ओवर कर देते हैं चेकलिस्ट कि आप इस चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज गलत हो रही है, यहाँ पे आपका ज्यादा एफर्ट लगना चाहिए. Right. ये सारी चीजें उनको देते हैं. Right. There's another very, controversial topic that I must say I want to talk about. Controversial in a way that we always talk about from a franchise owner's point of view. हम हमेशा ऐसे सुनते हैं franchise owner बोलते हैं कि brand ये नहीं कर रहा है या फिर brand ये नहीं दे रहा है, brand वो नहीं दे रहा है. मतलब हमेशा वो side of story सुनते हैं. I want to hear your side of story as a brand, that what help do you give to a franchise owner, and as a brand also how difficult it is, because I'm sure like you said कि हम हर चीज का फ्रीडम उनको नहीं दे सकते. So now I understand your perspective also.
So what sort of help do you give to franchise owners and what things, challenges do you face कि हम ये नहीं कर सकते तो हमें इस चीज को लेके strict रहना ही पड़ता है, you know, those kind of challenges while dealing with franchise owners. Let's talk about restriction first. कि हर एक फ्रेंचाइज, एज आई मेंशन अर्लियर, कि हर एक फ्रेंचाइज ओनर अपना एक थॉट प्रोसेस लेके आता है. True. So recently we opened one outlet in Amreli. That guy was super energetic. वो दिन में मुझे ऑलमोस्ट इनॉग्रेशन से पहले दिन में 10 कॉल करता था कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे. और हर दूसरे दिन नया सजेशन आते हैं उनकी साइड से, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे. बट वो मुझे देखना है कहीं ना कहीं कि ब्रांड गाइडलाइन डाइल्यूट ना हो. कि सजेशन देना उसका काम है, उसको पता नहीं है कि मुझे 20 आउटलेट को साथ लेके चलना है, मुझे 25 आउटलेट को साथ लेके चलना है, नहीं उसके एक स्टोर को मुझे शोकेस करना है. वो अपने स्टोर के लिए कंसर्न है कि मुझे अपने सिटी में मेरा स्टोर सबसे ज्यादा चले, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, सबसे ज्यादा सेल्स करे. बट मुझे कहीं ना कहीं उनको 20 आउटलेट के साथ अलाइन करके चलना है कि सारे स्टोर एक ही डायरेक्शन में चले. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मना करना पड़ता है कि ये चीज नहीं हो सकती, इन अ जेन्युइन वे, कि पोलाइट वे में, कि ये चीजें नहीं हो सकती आप, क्योंकि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं. Right. तो वहां से एक बार उनको बोलना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं भी लगता है, बट फिर भी बोलना पड़ता है. स्पेशली सजेशन आते हैं मेन्यू को लेके कि व्हाई डोंट यू लॉन्च दिस, व्हाई डोंट यू लॉन्च दिस. इन्वेंट्री में सेट होता है तो ठीक है, हम इनकॉर्पोरेट करते भी है, क्योंकि कोई भी चीज डायरेक्टली ऐसे लॉन्च नहीं कर सकते. उसके पीछे काफी 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 सारी चीजें देखते हैं कि सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी, यहाँ से वहां जाएगी तो किस फॉर्म में पहुंचेगी. बीइंग QSR अपने हैं, तो QSR में आपके पास 5 से 10 मिनट है कस्टमर को सर्व करने के लिए. तो किस फॉर्म में आउटलेट पे पहुंचेगी, वहां पे कुकिंग टाइम कितना रहेगा, कुकिंग टाइम के बाद कस्टमर को प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, फिर जाके कस्टमर के पास पहुंचती है. तो वो बैक एंड का वर्क बहुत बढ़ जाता है. इसीलिए मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट भी लॉन्च करनी होती है तो काफी सारा उसमें काम लगता है पीछे. रही बात फ्रेंचाइज ओनर की, योर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि फ्रेंचाइज ओनर. So basically, it was कि आप franchise owners को how do you help them? Like apart from marketing, apart from branding guidelines, from a franchise brand point of view, a franchise owner को और क्या-क्या चीज से help करते हो? Like what support do you provide them? I think that's a better way to put it. ओके. इनिशियली सबसे पहले लॉन्च टाइम पे हम मेन फोकस यही रहता है कि हाइप क्रिएट कर. राइट. लॉन्च टाइप पे हाइप क्रिएट कर दिया मतलब आपका ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा. मगर अगर लॉन्च ही आपने ठीक नहीं किया, हाइप क्रिएट नहीं हो रहा, लोग बोल नहीं रहे आपके बारे में, बज क्रिएट नहीं हो रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन, तो आगे जाके उसको काफी दिक्कत आने वाली है. तो हम स्टार्टिंग से यही प्लान करते हैं, प्री लॉन्च कैंपेन, पोस्ट लॉन्च कैंपेन एंड लॉन्च एक्टिविटीज. 3 फेज में काम करते हैं. प्री लॉन्च पे कैसे बस क्रिएट करें, लॉन्च टाइम पे कैसे मैक्सिमम कवरेज मिले, बीट इन्फ्लुएंसर, ऑफलाइन प्रमोशन, बिलबोर्ड्स, कॉलेज फेस्ट में स्पॉन्सरशिप वगैरह, ये सारी चीजें मतलब एक 360 डिग्री अप्रोच करते हैं कि मैक्सिमम विजिबिलिटी स्टोर को मिले और मैक्सिमम वॉक इन्स मिले स्टोर पे ड्यूरिंग द लॉन्च डे. उसके बाद पोस्ट लॉन्च पे वर्क करते हैं कि कस्टमर आ तो गए बट उसको रिटेन कैसे करें, रिटेंशन के लिए क्या कर सकते हैं. एक बार कस्टमर आया तो दूसरी बार कैसे बुलाए, तीसरी बार कैसे बुलाए. वही मेन योर अर्निंग लाइज देयर ओनली, कि कस्टमर एक बार आ गए ठीक है, उससे कुछ पैसा नहीं बनेगा, बट वो कंटिन्यूअसली वापस आ रहे, अपनी ग्रुप फ्रेंड्स को लेके आ रहे, वहीं पे यू लर्न मोर. तो पोस्ट लॉन्च पे भी काफी वर्क होता है. ये 3 चीजों पे खास फोकस करते हैं. कई सारी चीजें ऐसे होती है हमारे हाथ में नहीं होती, गलत लोकेशन चूज कर लिया, ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहे, फ्रेंचाइज ओनर अपनी साइड से एफर्ट नहीं देते, तो कहीं ना कहीं सेल्स हिट होता है, सेल हमने एक्सपेक्ट किया है वो नंबर्स मैच नहीं हो पाते. तो वहां पे हम फ्रेंचाइज ओनर को मॉनिटरी सपोर्ट भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ रॉयल्टी वेव ऑफ. यस, तो मॉनिटरी सपोर्ट भी मिलता है उनको.
सो मार्केटिंग इज सेंट्रलाइज्ड या फिर मार्केटिंग वो लोग खुद से कर सकते हैं? लाइक अगर मान लो उनको कोई एड रन करना हो या बिलबोर्ड करना हो तो वो खुद कर सकते हैं या वो आप लोग करके दे? Usually, what we do is conceptualization would be from our end, ओके। डिजाइनिंग फ्रॉम आवर एंड, ताकि हम्म। ब्रांड गाइडलाइन डाइल्यूट ना हो. अगर हर एक फ्रेंचाइज ओनर अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है कि कोई एक सिटी में कोई ब्रांड देख रहा है, दूसरे सिटी में देख रहा है, तो विजुअल्स अलग अलग रहेंगे. तो राइट। बेटर कि हमने ये वो अपने हाथ में ही रखा है कि इन हाउस टीम रखी है. डिजाइन कंसेप्चुअलाइजेशन यहाँ से होगा, डिजाइनिंग यहाँ से होगा, डिलीवर यहाँ से होगा सब. बट लोकली वहाँ पे उनको बिलबोर्ड्स करने हैं तो वो लोकली परचेज कर सकता है. न्यूज़पेपर एड देनी है वो लोकली कर सकते हैं. बट क्या होगा वो हम डिसाइड करते हैं कि ओके। आपको न्यूज़पेपर में ऐड देना है तो कम्युनिकेशन क्या रहेंगे वो हम डिसाइड करते हैं. लोकल लैंग्वेज में रखना है, हिंदी इंग्लिश क्या कैसे करना है वो हम डिसाइड करते हैं. राइट। इनपुट्स आई। उनकी साइड से मिलते हैं डेफिनेटली. जैसे कि अमरेली जैसे छोटे टाउन में हमने अभी टीयर, यू कैन कॉल इट टीयर 3 सिटी, तो वहाँ पे मेरे कम्युनिकेशन इंग्लिश में है ही नहीं. वहाँ पे हमने सारे कम्युनिकेशन गुजराती में की है. फ्रेंचाइज ओके। ओनर ने बोला कि हो सके उतना गुजराती में कीजिए, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. अभी तक का हमारा सबसे प्रॉफिटेबल QSR इज अमरेली आउटलेट, एंड ओके। इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 to 2.5 months only, but it's doing tremendous business. That's interesting. I think it makes sense also from brand point of view कि आपका कोई भी brand perception dilute नहीं हो रहा है. Correct. Yeah, I think makes sense. So during your journey, Rachit, one thing that I want to know, any key milestones that you remember and key challenges that you faced as a brand giving out franchisee? I mean, any tips that our Milestone. listeners can take away? Okay, tips. I don't know. I would share experience rather Yeah, than tips. experience, yeah. Tips तो मेरे पास है, tips तो है ही नहीं कुछ. Experience. Uh, let's talk about milestone. We recently gave our master franchise of whole Gujarat state. Okay. That was our biggest achievement. Yes, yes. Hmm. Last year we gave our master franchise for Gujarat. So कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि हमने मास्टर फ्रेंचाइज दे दी है. सेकेंड वॉज गोइंग आउट ऑफ गुजरात. काफी टाइम से दिमाग में था कि गुजरात अब ऑलमोस्ट स्पेशली सौराष्ट्र रीजन पूरा कवर कर लिया है, तो अभी Right. गुजरात के बाहर जाएंगे, गुजरात के बाहर जाना है, गुजरात के बाहर जाना है. बट एक तो बेस नहीं है हमारा गुजरात के बाहर कहीं पे भी, कहाँ से स्टार्ट करे कैसे करे, वी वर क्लूलेस. And this year in March we signed an LOI for Raipur, Chhattisgarh. So again that was one of the biggest milestone ki first store out of Gujarat. So we are opening in Raipur this year, hopefully in 2 or 3 months. So again ki वो एक बड़ी achievement थी हमारे लिए. We are opening 3 outlets out of Gujarat this year. One in Mumbai, one in Chhattisgarh, Raipur, and another one in Chhattisgarh, but in Rajnandgaon city. So ये काफी अच्छा लगा, ये 3 And that's achievement amazing. थी. Congratulations. I mean, after Thank you. 21 outlets moving out of Gujarat, I'm sure that थोड़ा तो risky decision लगा होगा. रिस्क था क्योंकि बैक इन 2015 ऐसा सोचा नहीं था कि विल ओपन अवर स्टोर इन मुंबई. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. I'm sure. And I'm sure you guys will do great. कब, when is the opening? We just signed LOI. अभी लोकेशन हंटिंग चालू है. लोकेशन हंटिंग will take around 1 month and the fit out period is somewhat around 2 months. So it will take 3 months at least. Okay. बीच में मानसून सीजन अगर डिस्टर्ब करता है तो थोड़ा ज्यादा होगा, बट 3 months पकड़ के चल रहे हैं अभी. Right. So before we close this, one last question. When we talk about location, who takes the decision location का? Is the franchise owner who takes the decision या brand decide करता है? या फिर आप लोग मिल के करते हो? Both. Okay. both. There are certain criteria कि मेरी ब्रांड को ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए.
हम्म. मुझे पार्किंग अच्छा चाहिए, मुझे Okay. जहाँ पे आउटलेट है, आउटलेट के आजू बाजू में फूड ब्रांड्स चाहिए कि नहीं, वो डिसाइड होता है। अगर वो Okay. कैचमेंट पूरा फूड ब्रांड्स का है, हम्म. विल इट वर्क और नॉट। अगर वो डार्क जोन है, डार्क जोन में अगर मेरा पहला स्टोर है, विल इट वर्क और नॉट। मेरा ओवरहेड एक्सपेंस क्या है। इन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री देयर इज अ रूल कि योर लीजिंग कॉस्ट शुड नॉट बी ग्रेटर मोर देन 15% ऑफ योर Okay. टोटल रेवेन्यू। तो अगर अच्छा लोकेशन मुझे मिल रहा है, विजिबिलिटी भी अच्छी है, कैचमेंट अच्छा है, बट मेरा लीजिंग कॉस्ट 15% से ज्यादा आ रहा है, मतलब मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस डे वन से ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं इश्यू आता है, लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाते। और ये चीजें हमने, ये मिस्टेक हमने की है, इसलिए हमें पता है कि कहीं कहीं लोकेशन अच्छी सिलेक्ट कर ली, बट रेंटल्स हमने काफी ज्यादा दे दिए, फिर वी हैड टू शट इट डाउन। तो ये प्रॉब्लम हमने फेस की है। अगेन आजू बाजू में यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है कि नहीं, ट्यूशंस वगैरह है कि नहीं, कि स्पेशली आपको स्टूडेंट क्राउड चाहिए, आपको वर्किंग प्रोफेशनल चाहिए, कौन से क्राउड को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो है कि नहीं, स्टोर फ्रंट कितना है, पार्किंग स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, मंथली ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या आ रहा है। तो वो कैलकुलेशन करते उस हिसाब से पता चलता है कि यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। Right. So basically, ये what चीजें one काफी thing, मैटर करती है। yeah. So basically, what one thing that I learned over here is that हर चीज के लिए you have SOPs and guidelines prepared. Like franchise location के लिए, menu के लिए, branding के लिए, marketing के लिए. And as a brand owner, that helps a lot. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड अप हियर। Hmm. हमने जब साइजर स्टार्ट किया, अर्लियर वी सॉ कि यूजुअली सारे आउटलेट्स कैफेटेरिया की ग्राउंड फ्लोर पे ही थे। Hmm. तो हमने एक आउटलेट फर्स्ट फ्लोर पे ओपन किया, रिस्पॉन्स अच्छा था, ओवरहेड एक्सपेंस भी काफी कम आते, क्योंकि फॉर ग्राउंड फ्लोर एटलीस्ट रेंटल इज अराउंड 100 to 150 रुपीज और 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। कोई भी सिटी में आप पकड़ लो, रोड के हिसाब से डिफर करता है। बट अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ तो इट वुड बी समवॉट अराउंड 50-75 रुपीज। एक आउटलेट किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हुए, दूसरा आउटलेट किया फर्स्ट फ्लोर पे, तीसरा किया, चौथा किया। तो तब जाके पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे भी आउटलेट हो सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी प्रॉफिटेबल आउटलेट्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्राउंड फ्लोर पे ले लो, विजिबिलिटी ज्यादा रहे, जरूरी नहीं है। आपको मार्केटिंग स्पेंड बढ़ाना पड़ेगा, बट आपकी मंथली कॉस्ट जो हर महीने आप रेंट पे जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो बच रहा है। मान लो आपका रेंट ग्राउंड फ्लोर पे 1 लाख रुपए, वही चीज आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो 70-80 हजार या फिर 60 हजार में क्लोज हो जाएगी, तो हर महीने आपका 40 हजार तक बच रहा है। Right. वो आप मार्केटिंग में डालो, कस्टमर ड्राइव करने के लिए आप स्पेंड करो, मार्केटिंग एक्टिविटीज बढ़ा दो, आपको हर महीने तो नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट। Right. तो ये चीजें हम फ्रेंचाइज ओनर को हर बार बोलते हैं कि लोकेशन सिलेक्शन में आप यही प्रेफर करो, विजिबिलिटी इज फर्स्ट प्रायोरिटी, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कि आप रेंट ज्यादा पे करो। मार्केट आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस इससे ज्यादा होने नहीं चाहिए, उससे ज्यादा आप ना आगे बढ़ो। One of our outlets is on second floor, yes, Puj, and that is doing really well. Mm-hmm. स्टार्ट किया था, इवन आई वाज क्लूलेस कि सेकंड फ्लोर पे कौन आएगा, Right. बट सिटी में अच्छे मतलब मार्केटिंग स्पेंड उसमें बढ़ा दिए थे। नॉर्मली जो भी बजट रहता है मार्केटिंग का, उससे ऑलमोस्ट हमने डबल कर दिया था बजट Okay. उस सिटी में। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला और लोग सेकंड फ्लोर पे इजीली आते हैं। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। I think if they're liking the place, एम्बियंस, फूड, सर्व, या अगर आज मेरे को कोई कैफे या जगह अच्छा लग रहा है, वहाँ का खाना अच्छा लग रहा है, ऑम्बियंस एक्सपीरियंस सब अच्छा लग रहा है, तो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाना इज नॉट एन एफर्ट फॉर मी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहली बार कस्टमर को लाने के लिए प्रॉब्लम होगी, पहली बार आपको उनको लाने के लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे कि आप कैसे लाएंगे, बट एक बार वहां पे आप आउटलेट पे आपके आ गया, फिर आपका खाना है, फूड है, एम्बियंस है, सर्विस है, उसी पे ही है। राइट. या एग्जैक्टली. That's amazing. Acha, one last question. I just, popped in my mind. We talked about marketing so much कि अभी लेटली आपने बोला इतना मार्केटिंग में स्पेंड ज्यादा करते हैं, बढ़ा देते हैं. डिपेंड्स आपका लोकेशन क्या है, कहाँ पे, कैसे है.
What is that one channel you prefer to market more on? Like, what is, पीपल टॉक अबाउट कि डिजिटली ये कर देंगे वो कर देंगे. डिजिटल Hmm. पार्ट इज इम्पोर्टेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. Hmm. स्पेशली जो टीजी हम पकड़ के रख रहे हैं 18 to 25 years old, Hmm. Hmm. टेक सेवी है, हर टाइम वो फोन पे ये रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम Hmm. पे, स्नैपचैट पे, तो वहां पे यू शुड बी. बट डिजिटली इतना क्लटर है अभी, हर दूसरी रील आपको फूड की आ रही है, अलग अलग रेस्टोरेंट की आ रही है, तो वहां पे कंपटीशन बहुत है. Hmm. सो हम इतना ही फोकस करते हैं प्रिंट एड्स में, Okay. क्योंकि वहां पे इतनी प्लेयर्स नहीं है. बिलबोर्ड्स पे भी हम खर्चा करते हैं, तो वो काफी इफेक्टिव रहता है. अभी थिएटर एड्स भी अभी करते हैं हम. Oh, तो that's वहां पे interesting. जो दूसरी ब्रांड्स जो स्पेशली डिजिटल पार्ट पे फोकस करती है, उसके अलावा हम ये ऑफलाइन एक्टिविटीज भी करते हैं, तो वो फर्क पड़ता है और दिख भी रहा है. और ये चीज हम पिछले 1 साल से ही कर रहे हैं. तो पहले जो भी सिनारियो था और अभी का सिनारियो काफी चेंज हो गया है. Interesting. तो I've ऑफलाइन एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहिए. Yeah, I've seen very less brands like you rightly said. बहुत कम restaurant brands देखे हैं जो offline में invest करते हैं. Yeah. रीजन इज So एज आई मेंशन कि डिजिट हर एक ब्रांड डिजिटली आ रहा है. digitally, हर yeah. को हर को हर एक को इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने, दिन में इतने एड्स आते, रिकॉल रेशियो ही कम हो रहा है. दिन में 10 ऐड देख रहे हैं आप रेस्टोरेंट के, आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सा रेस्टोरेंट, कौन से कैफे की ऐड देख ली है. बेटर है कि इंस्टाग्राम पे भी ऐड देख रहे हैं, सेम टाइम आप सिटी में कहीं पे जा रहे हैं उसका होर्डिंग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर ऐड देख रहे हैं, या फिर अपनी कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज या कोई भी इवेंट्स में आपने उनको देख लिया, तो हर जगह से आपको वही ना वही वो हैमरिंग इफेक्ट मिलना चाहिए Right. कि 4-5 बार देख लिया वो चीजें, तो एक बार जाके तो आते हैं कि क्या है साइज जीरो, ये True. दिमाग में होना चाहिए. True. Awesome. So, Ruchir, thank you so much for giving so many insights. I just have two important questions that I ask everyone before we sign off, for this podcast. One is, I want to know one bold decision that you took for Size Zero Cafe that you're still proud of that you took that. एक bold decision. मैनी going initially we never thought कि it would be a food chain कि इतने Okay. स्टोर्स करेंगे ये वो. बट फर्स्ट फ्रेंचाइज देने के टाइम पे एज आई मेंशन कि हमें पता ही नहीं था फ्रेंचाइज मॉडल क्या है. हमारा फ्रेंचाइज ब्रोशर भी रेडी नहीं हुआ था. रॉयल्टी स्ट्रक्चर, रेवेन्यू स्ट्रक्चर, कहाँ पे आरओआई सेट होगा, पेबैक कितने टाइम में आएगा, ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं था. बट फ्रेंचाइज की अपॉर्चुनिटी आई, हमने दे दी. वो एक ट्रिगर पॉइंट था कि एक बार फ्रेंचाइज दे दी, फिर लर्निंग वहां से ही चालू हो गई. हमने अलग अलग फ्रेंचाइज मॉडल स्टडी किए, दूसरी ब्रांड्स को स्टडी किया, फिर जाके पता चला कि भाई ऐसे भी हो सकता है, फ्रेंचाइज ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नॉर्म्स आते हैं, ऐसी गाइडलाइन आती है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ऐसे पैसे और बन सकते हैं. तो पहली फ्रेंचाइज देना वाज द ट्रिगर पॉइंट की वहां से स्टार्ट हो गई जर्नी. उससे पहले हमने सोचा भी नहीं था कि फ्रेंचाइज देंगे. Right. So I think your bold decision was कि franchise model में घुसना है. That was your one decision that I think you guys, yeah. Okay. And one advice, any advice that you want to give to our listeners? Any advice? एक्चुअली हम भी सीख रहे हैं और हमने सीखा है अपनी गलतियों से ही. ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पता था पहले से ही. जितनी भी मिस्टेक्स हमने की है वहां से ही हमें पता चला कि अरे ये चीज ऐसे नहीं होती है. खुद ही किया है, खुद ही गिरे और खुद ही उठे हैं. तो ये चीज सेल्फ लर्निंग है. मेन चीज ये फ्रेंचाइज अगर कोई भी फूड इंडस्ट्री में आता है तो आपको ये बाय डिफॉल्ट पकड़ के चलना है कि आपको एक भी दिन छुट्टी नहीं मिल रही है. आपको फेस्टिवल पे भी काम करना है. आपको कस्टमर के लिए 11 बजे रात को 12 बजे कभी भी आपको अवेलेबल रहना है. ये रेडीनेस अगर आपके पास है तो ही फूड बिजनेस में आए. बाकी बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे इससे भी ज्यादा अच्छे मार्जिन है, अच्छे प्रॉफिट्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्शन लाइन में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, पैसे हर जगह पे बन सकते हैं. बट ये चीज आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो तो ना आए.
Yeah. पैशन है, लोगों को सर्व करना है, एक स्माइल आती है कि मान लो कोई कैफे पे आता है हमारे यहाँ, दे क्लिक अ सेल्फी और वो सोशल मीडिया पे डालते, फूड की फोटो खींचते, सोशल मीडिया पे स्नैपचैट पे डालते, और वो चीज हमें टैग करते, मेंशन करते, और हमें इंस्टाग्राम से पता चलती है, तो वो खुशी मिलती है, वो कहीं और नहीं है। Yeah. तो Right. एक रेडीनेस ये रहनी चाहिए कि कस्टमर के लिए आप हमेशा अवेलेबल हो। Hmm. लिसन दैट, Right. That's amazing. दैट इज So we are at the end of our podcast. So thank you so much, Ruchit, for gracing us and एक्चुअली giving आई us. शुड थैंक यू गाइस। No, you. I'm sure all of our listeners will take a lot away from it. I think franchise is one thing that is talked about a lot, but there are a lot of myths around it. So आज आपने बहुत सारे myths burst किए, and there's lot to learn. हम कभी भी like I said during our talk as well, कि कभी हमें brand side का story नहीं पता चलता. हमेशा एक from a franchisee owner side we know a lot of things that we listen to also a lot of, but एक brand के side का perspective is something that's different. So thank you for giving us a brand side का perspective over here. Thank you so much. प्लेजर्स ऑल माइन।